ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਚਰਚਿਤ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਏ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਦੀ ਇਸ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਕ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡੀਪਲੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ CBI ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਤੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ, ਔਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਆ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ 17 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਘੁੰਮ ਘਮਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੇਜ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। डॉक्टर मोहित, बहुत धन्यवाद आपका जी। नमस्कार जी। मैं आपको पंजाबी में ही पूछूंगा, लेकिन आप जो भी कंफर्टेबल फील मैं हिंदी बोल पाऊंगा। हाँ, हिंदी में बोल पाए। बेसिकली आप कहाँ से हैं? मैं अम्बाला से हूँ। अच्छा, वैसे मैं अच्छी हिंदी बोल लेता हूँ। नहीं, आप पंजाबी बोलिए, मुझे समझ में आती है, मैं पंजाबी सीखा हूँ, ऐसे नहीं। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ, ਕਿਉਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ, ਕਿਹਨੇ ਉਹ ਪੇ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ? ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 2007 ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ? ऐसा है जी, कोई भी आप राजनीति या पॉलिटिक्स है और धर्म, ये दोनों चीज़ें मिली हुई हैं आपस में। इसमें एक कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले 7 साल में, ख़ास तौर पे मोदी गवर्नमेंट में या बीजेपी गवर्नमेंट जब रूलिंग में आती है, तो एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता देखा है, वो है कि डायरेक्शन कौन दे इस देश को। धर्म क्या होता है? धर्म डायरेक्शन देता है, गवर्नमेंट व्यवस्था बनाती है, मतलब डिसिप्लिन है, अनुशासन, कानून है। जब गवर्नमेंट कानून में फेल है, कोई भी गवर्नमेंट कानून बनाने में, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या अच्छी व्यवस्था बनाने में फेल है, तब वो डायरेक्शन का इस्तेमाल करती है धर्म का, कि हम धर्म के मसले पे ले आए लोगों को, ताकि वो सिस्टम को देखना बंद कर दे कि हम समाज को डायरेक्शन भी दे रहे हैं साथ साथ व्यवस्था बनाने के साथ। आम तौर पे हर धर्म में प्रचारक होते हैं, वो सब धर्म के ज्ञान से व्यवस्था को नहीं देखते, वो अपना डायरेक्शन देखते हैं भी समाज इस दिशा में समाज सेवा करे ना करे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट उसके अनुसार व्यवस्था बनाती है। जब गवर्नमेंट धर्म में घुस जाए, मतलब वो व्यवस्था नहीं डायरेक्शन देना चाहती है, और क्योंकि ये डायरेक्शन उनको सुप्रीम फील कराती है। डेरा के गुरुजी समाज को दिशा दे रहे थे। 2007 तक कोई इशू नहीं था, उससे पहले सब बढ़िया था, पंजाब में सब मिलजुल के काम चल रहा था सब कुछ।
2007 में सीबीआई को केस चार्जशीट करना था उस टाइम पे, और केस का कोई बेस नहीं था उन केसों का। नतीजा एक ऐसा डिस्प्यूट खड़ा करना था जो डिस्प्यूट इस केस की तरफ से ध्यान हटा दे, और एक, क्योंकि गुरुजी का जो एंगल था वो समाज को दिशा देने का था। अगर व्यवस्था उनको दबोचती है तो जिन्होंने दिशा पाई है वो विरोध करने उतरेंगे। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ 7 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं मैं ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਰਵੇ, ਡਾਈਵਰਟ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। जी, क्या है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ये करती है, ये हर गवर्नमेंट प्रेशर बनाती है। 2007 में डेरा और सिख एक जैसी लगभग विचारधारा है। सिख हैं जो सिर्फ धर्म ग्रंथ को गुरु मानते हैं, उनका अपना इतिहास है अच्छा खासा। डेरा एक लिविंग गुरु है, इंसान के रूप में, उनको गुरु मानते हैं। दोनों का काम समाज सेवा करना है, वो खाना खिलाते हैं, लंगर चलाते हैं, और जो उनका समाज सेवा के काम चलते हैं, और पूजा पाठ भी करते हैं, जो अपना कीर्तन वगैरह करते हैं। ऐसे ही डेरा कर रहा है, अपने समाज सेवा के काम सब कुछ कर रहा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो उनका अपना इतिहास है, डेरा एक प्रेजेंट में गुरु के आदेश पे चल रहा है। ये एक मिली जुली सी विचारधारा है कुछ। अब यहाँ पे डिस्प्यूट खड़ा कर दिया उन्होंने। क्या किया, एक ड्रेस का कॉन्सेप्ट जनरेट किया। क्या है कि आप पंजाब में ज़्यादा रहे हैं, मैंने बहुत से पंजाब के लोगों से पूछा है, भी उन्होंने आज तक कभी भी गुरु गोविंद सिंह जी की ओरिजिनल ड्रेस देखी है? भी मुझे कोई नहीं मिला जिसने देखी हो, लेकिन इतना सुनने में ज़रूर आया भी एक उनके म्यूज़ियम में या कहीं ऐसी जगह वो ड्रेस संभाल के रखी गई है इस तरह की। तो हमने कहा भी कभी पुलिस ने किसी भी रूप में आपके सामने वो ड्रेस आई है ओरिजिनल, उसकी फ़ोटो या उसका वीडियो कोई भी जो ओरिजिनल ड्रेस है? बोला नहीं आई। किसी भी यूट्यूब पे पड़ी हो? बोला नहीं पड़ी। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये ड्रेस गुरु गोबिंद सिंह की ड्रेस डॉक्टर मोहित, वो ड्रेस गुरमीत राम रहीम होरा ने पाई, ਉਹਦਾ इश्तिहार दिता गया अखबार ਦੇ ਵਿੱਚ। जी, मैं वो किने दिता? मैं भी आगे बताता हूँ। ये क्या है कि ड्रेस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब उसके बाद था इश्तिहार। रात को 9-10 बजे 13 मई 2007 मेरा एग्ज़ाम था उस दिन। मैं PMT मेंस का मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं दिल्ली था। मुझे याद इसलिए क्योंकि मैं उस घटना में दिल्ली में आया। तो 13 तारीख को रात को 10 बजे वो प्रोग्राम ख़त्म होता है। सुबह 6 बजे इश्तिहार बढ़ जाते हैं, लगभग 2.5 लाख पम्फलेट बढ़ते हैं, और अखबारों के पेज पे पूरा पेज खरीदा जाता है 2 अखबारों का। कौन खरीदा? एक, हाँ बता, डेरे का मीडिया विंग है जी। डेरे का एक मीडिया विंग चलता है। उस टाइम पे मीडिया विंग का इंचार्ज गुरु जी के ताया जी का दामाद था, गुरबाज नाम था। वो मतलब उनको ज़्यादा पता है, वो इश्तिहार जारी करता सी, उनको पता है, वो मीडिया विंग के इंचार्ज थे। भी उन्होंने किसकी ड्यूटी लगाई? डेरा ने खरीदा होगा वो पेज, डेरा का मीडिया सेक्शन खरीदेगा। कभी ये मूवमेंट मतलब इन्वेस्टिगेशन इस डायरेक्शन में आई नहीं कि मीडिया विंग में ये इश्तिहार पे किसने किया। यही मेरा पॉइंट थी। हाँ, सेकंड, ओवरनाइट फोटो की 2.5 लाख मतलब फ़ोटो खींचने के बाद, वो फ़ोटो ऑफिशियल फोटोग्राफर ने खींची, वो फोटोग्राफ 2.5 लाख कॉपीज़ बन के बट गई। 2.5 लाख कॉपीज़। तो इसका मतलब वो फोटोग्राफ एक रात पहले की नहीं थी, वो पहले से खींची गई थी, क्योंकि सेम ड्रेस का फंक्शन 29 अप्रैल को भी हुआ था उसी ड्रेस के अंदर। वो फोटो तब की है जो 14 मई को अखबार टारगेटेडली बांटी गई। डेरे का अपना खुद का अखबार चलता है, सच कहूँ उस टाइम भी चलता है, नहीं लगे इश्तिहार, उसमें नहीं आए ये इश्तिहार। ये एक बड़ा इशू था, उसमें इश्तिहार नहीं आए। अगर डेरे को पब्लिसिटी करनी थी तो इश्तिहार उसमें भी आते। दूसरा क्या है कि जो अजीत अखबार है, ख़ास तौर पे पंजाब का, ये पंजाब के ज़्यादा कल्चर को या सिख कल्चर को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। टारगेटेडली वो अखबार चुना गया क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं, और हिंदुस्तान टाइम्स एक अच्छा फेमस, ये गांव में जाता है। अब आजकल जगबाणी ऐसा कोई अखबार भी चलता है, तो ज़्यादातर उस टाइम अजीत अखबार चलता था। और हिंदुस्तान टाइम्स क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के पास जाता है, इसलिए एक टारगेट हिंदुस्तान टाइम्स को भी किया। हिंदुस्तान टाइम्स में भी ये इश्तिहार लगा था, लेकिन किसी ने ये ट्रेस करना नहीं चाहा कि ये इश्तिहार डेरे का मीडिया विंग इंचार्ज कौन है, उनका फोटोग्राफर कौन है, जिन्होंने फ़ोटो इशू जारी किया,
भी किसकी कंसेंट से हुआ, और इस मसले में क्या गुरुजी से कोई पंजाब पुलिस का अधिकारी पूछताछ करने आया? नहीं आया। मसलन क्या है, बीच में धर्म के ठेकेदार जो बने हुए हैं, थोड़े थोड़े अलग अलग धर्मों के जो प्रचारक हैं, वो आए सुलह कराने। फिर भी उनकी तरफ से जो उन्होंने एडवाइस किया, सलाहकारों ने जो आए थे धर्म के प्रचारक, भी आप ऐसे कर दो वैसे कर दो, वो वैसे जारी करते रहे भी चलो ये सुलझना चाहिए। मसला ये था भी ये इशू दिमाग में कैसे बैठ गया भी ये पोशाक मेल खाती है गुरु गोविंद सिंह जी से, क्योंकि ओरिजिनल पोशाक क्या है? ओरिजिनल वो वैसी पोशाक तो अलग अलग कलर की 2017 तक पहनते रहे हैं वो। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਨਾ। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी, किसी को भी कसम देनी है या किसी को शपथ लेनी है, आप कोई भी आम तौर पे धार्मिक किसी भी कल्चर में जाएं, शपथ देने के लिए वो कोई पानी अंजलि भर लेते हैं या कोई प्रसाद देते हैं, कुछ भी है। उन्होंने एक शपथ दिलाई उस दिन 29 अप्रैल के दिन कि डेरे का स्थापना दिवस है और इस शपथ के अनुसार डेरा आज के बाद जाति धर्म में भेदभाव खत्म करता है और अपने नाम के साथ इंसान लगाता है। उसको शपथ ग्रहण करने वाले को ये प्रसाद ग्रहण करना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने हर जात धर्म के सिलेक्टेड बंदे, एक हर जात की तरफ से अलग अलग बाद में लिया भी आपने इसको छूना है, इसको टच करना है इस पानी को, भी ताकि ये जात धर्म का भेद खत्म हो जाए। जब आप टच कर लोगे तब इस पानी को, जो रूअफ़ज़ा का दूध था, अब इसको हम पियेंगे ताकि समाज को दिखाएं देखो हम भेदभाव नहीं कर रहे, अब आपने सबने पीना है। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਇਹਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਭੇਜੀ ਉਹ मुआफ़ी? मैं इससे पहले आता हूँ जी, माफ़ी से पहले यहाँ पे एक चीज़ बड़ी मिस कर रहे हैं। एक्चुअल में दंगा हुआ जब 2007 में बठिंडा में, कन्फ्यूज़न क्या है? कन्फ्यूज़न हमारे संगत में भी है, क्योंकि हमें भी पूरी जानकारी बाद में मिली। कन्फ्यूज़न सिखों के साइड भी है। कन्फ्यूज़न क्या है कि 2007 में 14 मई 2007 सुबह 6 बजे बठिंडा के लोगों को मैसेज दिया जाता है कि आज सिख प्रोटेस्ट करेंगे। 6 बजे ना तो अखबार आपके पास पहुंचा हुआ ना मेरे पास, कैसे पता था अभी वो प्रोटेस्ट करेंगे? रात की फोटोग्राफ लगना सी जिस दिन, हाँ अभी तो आना था, पहले से ये मैसेज गया। तो मैसेज दिया जगजीत सिंह ने, जो डेरे का पंजाब एरिया संभालता था, जो पॉलिटिकल विंग, मौके पे डेरे का सीनियर वाइस चेयरमैन है। हाँ, उस टाइम नहीं था, उस समय पॉलिटिकल विंग का मेंबर था। उसने मैसेज दिया सारा भी 6 बजे भी आप आ जाओ इकट्ठे हो गए, कोई गुरुद्वारा है आसपास में, मस्तवान ऐसा कोई गुरुद्वारा था एक आसपास भी, वहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक कोई उस टाइम की रूलिंग पार्टी का पॉलिटिशियन ये सब ड्राफ्ट कर रहा है। हालांकि पॉलिटिशियन का भी मालूम है, पर क्योंकि मैं एविडेंट कर नहीं सकते इसलिए उसका नाम नहीं बताते। अब उसे कैसे पता था 6 बजे? ये सब कुछ करते करते 11 बजे तक लोग इकट्ठा हो गए, वो सेक्रेटरीट के पास भी पहुंच गए। जगजीत सिंह के भाई ने भीड़ को, क्राउड को, जो डेरे का क्राउड था, उनको डंडे अवेलेबल कराए। अच्छा, ये चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं, मैं ऐसा हवा में नहीं बोल रहा हूँ, कोई क्लेम करना चाहे बेशक करे। उन्होंने डंडे अवेलेबल कराए, सब कुछ कराया। उधर से 200 लोगों का करीब करीब ग्रुप था जो प्रोटेस्ट करने के लिए सेक्रेटरीट आ रहा था, मिनी सेक्रेटरीट। जगजीत सिंह ने ऑर्डर दिया भी इनको लपेट दो, भी हमारे गुरु के खिलाफ जा रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ नहीं किया था। सिख जितना कल्चर, जितना मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी है, उनको एक चीज़ बड़ी चुभती है, वो है उनके पीठ पीछे किया गया हमला। उनको एक्सपेक्टेड ही नहीं था भी ये हमला उन पे होगा, और वो हमला इतना बुरे तरीके से किया गया था, बहुत बुरी तरह से पीटा गया था उन लोगों को। ये एक ऐसी चीज़ थी जो मतलब उनको चोट पहुंचा रही थी सिखों को। उसके अगेंस्ट उन्होंने फिर एक अपनी सभा बुलाई कहीं पे भी। उसके बाद ये सारा दंगा फ्लेयर हो गया पंजाब में, पंजाब से लेके दिल्ली और सारी जगह फ्लेयर हुआ। डेरा में क्या दिखाया गया, डेरा के में आके जब बठिंडा के लोगों ने बोला भी डेरा की संगत पे हमला हुआ है और उसके जवाब में ये कार्रवाई हुई है। तो अकाली बीजेपी सरकार उदों बन चुकी हुई सी। हाँ, अकाली सरकार रूलिंग में आई थी। हाँ, रूलिंग में आई सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दी सरकार गई सी ते अकालियां दी नई सरकार बनी थी। हाँ, उदों बनी सी अजे जदों ये सारा कुछ हुंदा। उस टाइम ये सारा कॉन्सेप्ट, मतलब ये सारा बिल्डअप हुआ। हमें तब तक हमारे सबके दिमाग में यही था कि हमारे पे हमला हुआ है संगत पे। लेकिन अब जब क्योंकि होया दूजे पासे सी, फिर मैंने कोर्ट के रिकॉर्ड निकालने चाहे भी, आखिर कोर्ट में क्या स्टेटमेंट्स आए हैं इस केस को लेके, इस झगड़े को लेके।
2017 तक तो ये केस चार्जशीट ही नहीं हुआ। 2007 से 2017 तक ये केस ही चार्जशीट नहीं हुआ। मतलब ना तो कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी, ये चार्जशीट ही नहीं हुआ। ਕਿਹੜੀ पोशाक वाली ਜਾਂ दंगे वाली? दंगे वाला। दंगे वाली, अच्छा। 17 पोशाक वाला मसला तो एक अलग चला गया। ये दंगा जब चार्जशीट नहीं हुआ तो 2017 में जब नई सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह की दोबारा बनी तब ये चार्जशीट होता है, लेकिन 1 साल के अंदर कोर्ट इसे इनसफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन मान के क्लोज कर देती है इस केस को, और ये सब केस बंद हो गया। किसी को नहीं पता। अब हमें समझ में नहीं आया अभी कानून में भी, अगर एक आदमी ट्रिगर कर दे किसी वायलेंस को और वो ओवर द स्टेट्स कहीं मल्टीपल स्टेट स्प्रेड और इन्वेस्टिगेशन भी ना हो और एक्यूज है, उस किसी को पता ही नहीं है वो कौन है भी उसका, और बाद में किसने भड़काया हो दंगा? हाँ भी ये सुलह कैसे हो गई, किसके बीच में सुलह हुई? अगर कोर्ट के अंदर ये राजीनामा भी गया तो किसके बीच में हुआ? ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਇਹ 7 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਚ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, 17 ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਿਆ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੀਡੀਏਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? यहाँ 3-4 लोग हैं जी पंजाब में। एक भवानीगढ़ के रामकरण है, एक जगजीत सिंह है, मेन जो खास तौर पे अकाली दल से अटैच हैं वो जोरा सिंह हैं, जो ज़्यादा सुनने में आता है। भी जोरा सिंह हैं, एक सलावतपुरा के पास ही गांव है उनका, एक वहीं पे कोई पॉलिटिशियन भी है ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, वो रामकरण भवानीगढ़ है जी। अच्छा, वो रामकरण भवानीगढ़ के जो डेरे में लेकर आते ਇਹ मीडिएटर ने, हैं, ये लोग लेकर आते हैं। अच्छा। डेरा क्या है, डेरा 3 पार्ट्स में एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। एक गुरुजी के एंड पे गुरुजी, उसके बाद बीच में जो ट्रस्ट के ऑफिस बेरर हैं ऑन पेपर, तीसरी है मैनेजमेंट कमेटी, प्रबंधकीय समिति कह देते हैं, ये ऑन पेपर नहीं है। ये क्या है, ये सिर्फ संगत को संभालती है। संगत और डेरा की ऑफिशियल ऑफिस बेरर विपासना के बीच में ये मीडिएटर, बीच में कनेक्टिंग लिंक है। विपासना रिपोर्ट करती थी गुरुजी को। ये जो मीडिएटर है यही हर चीज़ प्रोजेक्ट करके डेरा लेकर आते हैं, इन्हीं को यही बताते हैं आके मैनेजमेंट को कि जो ऑफिस बिरर्स को भी ये लोग मिलने वाले हैं, ये नहीं मिलने वाले हैं। तो विपासना फिर अपने सिस्टम से उनका अपॉइंटमेंट सिस्टम रखती है। ਐਲਾਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੋਣੀ ਕਰਦੇ नहीं, ਸੀ? देखो उनके एंड से कभी कुछ नहीं होता था। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार ये प्रकाश सिंह बादल थे, और बहुत पहले की बात है, 2007 से पहले की। प्रकाश सिंह बादल थे और उन्हीं के पैरेलल कोई और कैंडिडेट भी था। वो दोनों एक साथ ही मिलने आ गए गुरुजी से, दोनों एक साथ मिलने आ गए एक ही टाइम पे। तो वो अपने गनमैन को बोलते हैं, कहते हैं अभी ये इकट्ठे आ गए, अब ये लड़ी ना पड़े यहाँ पे। तो वो आके बैठ के बोला जी हमारे को आशीर्वाद दो, हमारे को इलेक्शन में लड़ रहे हैं ये बोले। तो दोनों से पूछ के बोले ऐसा है भी आप अपने अपने करो, हमारे वाले लोग इंटरफेयर ना करें, हम महाराष्ट्र चले जाते हैं इन दिनों, इलेक्शन के दिनों भी, ताकि आपका इलेक्शन अनबायस्ड रहे भी, हम हमारे लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब उनके एंड पे तो हर एक पॉलिटिशियन, बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे लाइन लगा के ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਬਾय ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾर्टी? देखो कोई भी बंदा जो रिप्रेजेंटेटिव है, हर एक पार्टी चाहेगी वो मेरे हक में आ जाए। डेरा के अंदर पॉलिटिकल विंग में कांग्रेस इन्फ्लुएंस्ड लोग भी थे, अकाली दल इन्फ्लुएंस्ड भी थे, और बीजेपी इन्फ्लुएंस्ड भी हैं जो बाकी स्टेट्स की तरफ से। पंजाब की तरफ से ज़्यादातर अकाली दल, मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल विंग अकाली दल इन्फ्लुएंस्ड है, और कुछ हैं जो कांग्रेस से भी इन्फ्लुएंस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नहीं हैं, लेकिन मेजॉरिटी अकाली दल इन्फ्लुएंस्ड है डेरा के, जो पंजाब पॉलिटिकल विंग को हम देखते हैं। रही बात ऑर्डर की, जो गुरुजी ने स्टैंडर्ड सेट किए थे भी, आप पब्लिक से पूछोगे, पब्लिक 60% मेजॉरिटी में जाए, ये स्टैंडर्ड्स कभी फॉलो किए ही नहीं गए, क्योंकि ब्लॉक्स में बटा है, हर ब्लॉक आपस में कम्युनिकेट तो उतना करता नहीं। डेरे के मेन सत्संग में कभी इन चीज़ों की चर्चा होती नहीं, वहाँ अलाउड नहीं है, वहाँ सिर्फ सत्संग ही होता है। तो ये मीटिंग्स यूजुअली डेरा के सलावतपुरा में होती हैं या किसी स्टेडियम में बाहर किसी उसमें होती है। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ? ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋ? ये क्या था जी, 2014 में फिल्म आती है पहली
MSG मैसेंजर, पंजाब में रिलीज नहीं नहीं होती होती, हाँ जितना मैंने स्टडी किया है। देखो मैं अपना ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, जितना मुझे पता भी चला है। पहली फिल्म आ गई, सेकंड फिल्म जब आनी थी तो पहली फिल्म से रेवेन्यू नहीं आया, लेकिन क्या है कि गुरुजी का काम रोल प्ले करना है, क्रू सिलेक्ट करना नहीं था। वो क्रू नीचे की कंपनी सिलेक्ट करके लाती थी, उनका अपना काम रोल प्ले करना था, क्योंकि सारी गुरुजी पे सेंटर्ड थी, तो इसलिए उनको वेटेज मिलता ही था। जब पहली मूवी से इनकम नहीं आई तो ये चर्चा का विषय हो गया, अभी पंजाब में फॉलोअर्स ज़्यादा हैं और देखेगा कौन। और उन्होंने गुरुजी के सामने प्रोजेक्शन रखी, बहुत बड़ी फिगर की, हम इतना कमा रहे हैं। एक्चुअल में नहीं कमा रही थी कंपनी अच्छा इतना, वो प्रोजेक्शन गुरुजी के सामने दिखाया जा रहा था कि गुरुजी ट्विटर से डालते रहे उनको, जैसे उनका IT हैंडल जो भी होगा हैंडल करता है, उसको डाटा कुछ और जा रहा था। दूसरी मूवी जब आई तब ये जा भी क्यों ना ये पंजाब में रिलीज़ कराई जाए, लेकिन मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ भी, अगर पंजाब में मूवी रिलीज होने का मतलब है भी डेरा सिख समझौता हो गया, भी एक तरह से वो सत्संग हो गया पंजाब में, अगर आप उनका प्रचार होने लगा वहाँ पे थिएटर्स के जरिए, भी ये समझौता हो जाएगा एक तरह से। ये समझौता हो, इसके लिए कंपनी इनिशिएटिव ले रही थी हाई कोर्ट के जरिए, लेकिन जितनी हमारी जानकारी है भी ये कोई पॉलिटिकल लेवल पे भी सेटलमेंट हुआ भी इस चीज़ को लेके। कोई ਜਿਹੜੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਜਾਂ ऐसा है, ਕਿਤੇ? देखो मैं बॉम्बे नहीं था और मुझे ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ। मैं बताता हूँ, मैं बॉम्बे नहीं था और मुझे पैटर्न पता है काम करने का। हाँ गुरुजी, मान लो गुरुजी इस घर में बैठे हैं, इस घर में बैठे हैं, किसी को मिलना है, उनका मैनेजर आगे बोलेगा जी आपसे ये लोग कुछ मिलना चाहते हैं, ये मिल लो, आशीर्वाद लिया गए, भी जो अपनी बात करनी करके जाओ। कोई भी नेगोशिएशन की मीटिंग गुरुजी के साथ कभी नहीं होती थी, किसी की भी आप इस चीज़ पे नेगोशिएट करो। ठीक है, ठीक है। वो अगर हो सकता है कोई पॉलिटिशियन आया भी हो तो वो आएगा मिलके चला गया होगा, लेकिन उसको प्रोजेक्ट बाद में कैसे किया गया। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਏ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ? ये कंपनी है जी, कंपनी सी कंपनी क्या कर रही है, कंपनी फिगर दे रही है भी जी इतने हो गए, हमारे तरफ से रिकॉर्ड है, आप अपने ट्विटर पे डाल सकते हो। ट्विटर से गुरुजी के ट्विटर से ही तो पता चल रहा है लोगों को। ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਬਣਾ ਲਏ। कंपनी का तो अपना कोई इतना प्रोजेक्शन था ही नहीं, वो गुरुजी की मतलब इमेज पे ही खेल रही थी। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ये ਸਮਝੌਤਾ हमारे देखो डेरे से जो उड़ती खबरें हमारे जितने मेरे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं भी डेरा ने एक पॉलिटिकल डील की, और ये भी थोड़े दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू का एक स्टेटमेंट आया, अभी 100 करोड़ की डील हुई, ये डील हुई। तो जितने मेरे सोर्सेज कहते हैं भी जब ये डील हुई तो इस डील का शोर मचने लगा, इस डील का शोर मचने लगा भी ये माफ़ी, क्योंकि जो सिख कल्चर है उसमें जत्थेदार पॉलिटिशियन के घर नहीं जाते भी, वो सुप्रीम बॉडी अकाल तख्त को माना जाता है भी, उनको उठ के आना पड़ेगा। तो इसमें वो सारा पैराडॉक्स है कि कौन गया कौन नहीं गया, वो लिखा भी गया कि नहीं गया, तो ये सारा अपने आप में पैराडॉक्स था। लेकिन गुरुजी को ये जानकारी दी गई भी ये हाई कोर्ट ने परमिशन दी है। अच्छा, गुरुजी ने अपने मीडिया इंटरव्यू में बोला भी हाई कोर्ट ने परमिशन दिया हमें मूवी चलाने की, पंजाब सरकार की जिम्मेवारी है सिक्योरिटी। लेकिन जब ये मसला डेरे में उठा तो राकेश जो गुरुजी का PA कहलाता था, मतलब PA नहीं कहते हम, कह लो भी बहुत एक तरह से मैसेंजर था, अभी उन्होंने अपना मैसेज आगे भेजना है तो उनके साथ एक PN के तौर पे परमानेंट खड़ा रहना, मैं हमारा मैसेज दे के आओ, उसको बुला के लाओ, उसको छोड़ के आओ। तो उस व्यक्ति का कहीं रोल बीच में लगा भी उसने कुछ गलत किया, तो उन्होंने अपनी PA की पोजीशन से हटा दिया उसे तुरंत। मैं उस मीटिंग में मौजूद था, तो हालांकि उस समय नहीं हटाया था, पहले ही हटा दिया था, लेकिन वो इस तरह की डीलिंग्स में बीच में रहता था, उसको हटा दिया। और वो कंपनी का डायरेक्टर भी था, डेरे की मेन कंपनी का डायरेक्टर भी था। जब उसे निकाल दिया गया उसके बाद था भी ये सच कभी सामने आएगा, अगर ये फिल्म चलती है तो नया विवाद चाहिए। अगर मैं इसको पॉलिटिकली ऑब्जर्व करूँ, एक नया विवाद चाहिए, ताकि क्योंकि गुरुजी ने क्या किया, पंजाब की सारी जितनी भी गवर्निंग बॉडी थी सबको बुला लिया, बोला अब तो माफ़ी हो गई भी, हो जाएगी, हो गया सारा सिस्टम, एक काम करो सत्संग की तैयारी करो पंजाब में, हमें तो सत्संग करना है, फिल्म से हमारा कोई मतलब नहीं। अब जोरा सिंह को बुलाया गया, जोरा सिंह क्योंकि सलावतपुर डेरे का हेड था, जोरा सिंह ने स्ट्रेट वे मना कर दिया, बोला जी नहीं हो सकता सत्संग। बोला क्यों नहीं हो सकता, लेकिन जोर देने लगे, पंजाब के लोग कहने लगे भी ऐसा है जी इनसे नहीं होता, पॉलिटिकल विंग से, हमें बोलो हम लेके आते हैं परमिशन प्रशासन से, भी ये बाउंड नहीं कर सकते आप, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बाउंड नहीं करता, ये आप ना कर सको। इसके बाद ये जो मेरे सोर्सेज कहते हैं, हालांकि मैं कंफर्म नहीं करता, अभी ये चीज़ प्लान करनी ज़रूरी थी कि कोई ऐसा नया विवाद खड़ा किया जाए। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ 90 ਲੱਖ ਦੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਡੀਲ ਦਾ ਪਾर्ट ਸੀ? मुझे लगता है कि ये डील को छुपाने के लिए हुआ। ये जो बरगाड़ी हुआ ना, जब ये माफ़ीनामे का मसला उठ खड़ा हुआ, भी मुझे मेरा ऑब्जर्वेशन है भी ये डील के ऊपर ध्यान ना जाए, एक नए इशू पे जाए। 2007 में पोशाक पहनना एक छोटा मसला था, लेकिन सिखों पे हमला करना एक बड़ा मसला था जो इशू बना। ठीक उसी पैटर्न पे 2015 में माफ़ीनामा एक छोटा इशू रखा गया, लेकिन जो बैबल कला में हुआ वो एक बड़ा इशू बन गया, क्योंकि एक निहत्थे लोगों पे, शांत लोगों पे हमला होना। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप सिर्फ एक सवाल बताएं छोटा सा, क्या कोई सिख जो है वो आउटफिट से पहचाना जाता है? उनके आउटफिट्स, कपड़ों से, जिससे भी। डेरा का आउटफिट नहीं है कोई ऐसा एक लॉकेट से पहचाना जाता है डेरा। फिर भी हम कहते हैं भी नकली सिख हैं, नकली केसधारी नहीं है, नकली पहन लिया। उनकी पहचान कैसे है भी? वो उनकी मर्यादा मानेंगे तो वो सिख हैं, नहीं मानेंगे तो नहीं है, भेष बदल दें। पॉसिबली डेरा की मर्यादा भी है कि 3 नियम है, ये नियम जो मानता है। ਪਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। मैं आपको बता रहा हूँ 3 लेयर में है डेरे की मैनेजमेंट। गुरुजी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, प्रबंधकीय समिति जो नीचे की है। प्रबंधकीय समिति ने चुना है पंजाब के मॉडल, पंजाब के लोगों के लिए महेंद्रपाल बिट्टू को, और उससे एक सिग्निफिकेंट पोजीशन भी दे के रखी भी, वो डिसीजन मेकर था पंजाब के एंड पे, और इन्फ्लुएंस भी था उसका, क्योंकि वो हर जगह प्रोटेस्ट में या हर जगह पॉलिटिकल मीटिंग्स में वो फ्रंट लाइन पे दिखता भी था भी। ये उसकी पहचान है, क्योंकि पंजाब के लोग महेंद्रपाल बिट्टू के जरिए पहचानते हैं डेरा को, इसलिए महेंद्रपाल बिट्टू एक बड़ा फेस है, लेकिन हायरार्की में वो नीचे है। अब आए आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे। पुलिस ने महेंद्रपाल बिट्टू से पूछताछ करने के बाद जाना भी डेरा की जो पॉलिटिकल विंग की नेशनल कमेटी है वो जिम्मेदार है, वो आगे इसकी पाइपलाइन, मतलब अगला स्टेप है इसका, लेकिन वो भगोड़े हैं, वो पकड़े नहीं है। उससे ऊपर कौन है? डेरे की प्रबंधकीय समिति, उससे ऊपर डेरे की मैनेजमेंट जो ऑफिस बेरर्स हैं, उसके बाद गुरुजी। जब इधर से चेन रुक गई, वो उधर से घूम के आए। उन्होंने पहले गुरुजी को पकड़ा, उनसे पूछताछ की, उन्होंने बोला मेरे मैनेजर तो ये 2 लोग हैं, उन्होंने मैनेजर से पूछताछ की, लेकिन उसके बाद वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन रुक गई। एक सिंपल सा क्वेश्चन नहीं सामने आया कि डेरे के पंजाब स्टेट का हेड कौन है, रिप्रेजेंट कौन करता है पंजाब को डेरा की मैनेजमेंट के सामने। वो हेड का नाम छुपा लिया गया। इट मींस वहाँ पे फिर मैनिपुलेट हो गया मैटर। ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ये मैनिपुलेट हो गया मैटर यहाँ पे। अब ये मैनेजमेंट कमेटी, हम कहें कि हमारे रिकॉर्ड्स में जितना हम जानते हैं कि जगजीत सिंह पंजाब का हेड है, जगजीत सिंह ही बतौर पंजाब की तरफ से वाइस चेयरमैन डेरे की मैनेजमेंट में जगजीत सिंह है भी। उसके अलावा बाकी पंजाब से कोई आदमी डेरे का वाइस चेयरमैन नहीं है भी, सभी अलग अलग काम की वजह से वाइस चेयरमैन होते हैं नीचे। तो एक जगजीत सिंह ही है, लेकिन ये बात डॉक्टर PR नैन ने बताई SIT को सवाल जवाब में या नहीं बताई मालूम नहीं। नीचे नहीं आया इन्वेस्टिगेशन वापस, SIT ने वहीं रोक दिया। इट मीन्स ये मैटर सिर्फ पॉलिटिकल इशू बना के रखना है, इसका एक्चुअल कल्प्रिट कौन है ये जानने की कोशिश नहीं करनी। ये एक सिंपल सा मॉडल है, अगर ये सॉल्व हो जाएगा केस तो ये हमेशा के लिए इशू खत्म हो जाएगा। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ? ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ये रेस है जी, दुनिया रेस में दौड़ रही है भी, डायरेक्शन कौन दे। आप 10 लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं, मेरी रेस है कि मैं आपकी पोजीशन पे आ जाऊं। कोई 20 को दे रहा है तो उसकी रेस है कि वो 20 वाली पे चला जाए। ये रेस है एक दूसरे को गिराने की। ये रेस है डेरा के अंदर डेरा की गद्दी हथियाने की, कि हम इस पब्लिक को जो क्राउड डेरे से जुड़ा है इसको डायरेक्शन दें। ये हमारी मर्जी से वोट डाले, हमारी मर्जी से चले, हमारे अनुसार इस पार्टी को कब समर्थन देगी, कब दंगा करेगी, कब क्या करेंगे, ये सब कुछ हमारे हिसाब से चले। उस रेस में डेरा के चीफ को हटा के एक नया चीफ अपनी मर्जी से बिठाने की रेस है। उस रेस में जहाँ जहाँ डेरा उठने लगता है
उसे वहाँ नीचा लाने के लिए कोई ना कोई वारदात प्लान की जाती है। और ये छोटी मोटी नहीं है, आपको सिर्फ 2007 की दिखती है। मोड ब्लास्ट भी है, 2010 में बसें जलाई गई, सीरियल आर्सनिंग हुई, टॉर्चिंग बस जलाई गई। इसके अलावा 2015 में हुआ, 2017 में पंचकुला हुआ, इतने बड़े स्केल पे। तो डॉक्टर मोहित, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਬਾय ਦੀ डिफरेंट पार्टीज। ये ट्रिगर था जी वहीं से कि पॉलिटिकल विंग बना। दरअसल 2006 तक ये सारा मैटर खट्टा सिंह हैंडल करता था। खट्टा सिंह डेरे का उस प्रबंधकीय समिति का इंचार्ज था। जब खट्टा सिंह डेरा के चीफ के खिलाफ स्टेटमेंट दे गया सीबीआई को, तो वो डेरा छोड़ के चला गया। ऑब्वियसली वो डेरा में रहेगा नहीं खिलाफ स्टेटमेंट देने के बाद। 2006 में वो गया, उसके जाते ही ये पॉलिटिकल सेटअप खड़ा हुआ पॉलिटिकल विंग का। गुरुजी बोलते थे हमारे डेरे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट ये किया गया भी पब्लिक की ज़रूरत है। धीरे धीरे वो इन्फिल्ट्रेट कर गया डेरा की फंक्शनिंग में और अपना इन्फ्लुएंस जमाने लगा। और उस इन्फ्लुएंस का ये हुआ कि गुरुजी की बातें नज़रअंदाज हो गई। आज हम जब उनके रिकॉर्डेड सत्संग उस समय के सुनते हैं तो हमें वो चीज़ें सुनाई देती हैं कि वो कह रहे थे, लेकिन हमने गौर नहीं किया। बार बार वो वीडियोस हम सुनते हैं, देखते हैं, एक नहीं है सैकड़ों वीडियोस ऐसे हैं भी जिनमें वो इशारा कर रहे हैं भी ये लोग आपको बेच रहे हैं, आप सावधान रहें, समझदार रहें। इसमें बहुत सारे लीगल पेच भी हैं, उस पर हम स्टडी कर रहे हैं कि क्यों ये मैटर कभी इन्वेस्टिगेशन में हरियाणा पुलिस ने नहीं उठाया या पंजाब में नहीं आया। वो कभी ना कभी मतलब हम पूरा इकट्ठा करके प्रेजेंट करें तो ज़्यादा बेटर है भी क्यों पुलिस भाग रही है। और 2017 जब पंचकुला हुआ उसके बाद अगर ये सारा कुछ इतना इन्फ्लुएंशियल है, आप इसको देखें कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है कि पंजाब गवर्नमेंट डेरा का कोई सत्संगी नहीं है जो पंजाब गवर्नमेंट को चलाता है। बावजूद इसके पंजाब गवर्नमेंट क्यों डेरे की एडमिनिस्ट्रेशन पे हाथ नहीं डाल सकती, जबकि वो गुरुजी के ऊपर हाथ डाल सकती है। क्यों सीबीआई डेरे की मैनेजमेंट पे हाथ नहीं डालती, गुरुजी पे हाथ डाल लेती है। क्यों हरियाणा पुलिस या बड़ी से बड़ी दंगा होने के बाद 42-50 लोग मरने के बाद गुरुजी पे हाथ डालना सबके लिए आसान है, मैनेजमेंट पे हाथ डालने से हर एक एजेंसी, हर एक पुलिस डरती है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि क्या मैनेजमेंट गुरुजी से ज़्यादा ओवर पावर्ड है कि गुरुजी को तो वो रिलीफ दिला नहीं पा रही है एक पैसे का भी। और ऑब्वियसली आपको पता है भी कितने केस ऐसे हैं, आप पता एनालिस्ट हो कि कितने क्रिमिनल केस ऐसे हैं जो 2-3-4 साल में हाई कोर्ट से क्लीन होते हैं या री ओपन हो जाते हैं। 3 साल में तो ख़त्म भी हो जाते हैं ओपन होके। क्या डेरा का आईटी या लीगल सेल या लीगल इतना डेरा कमज़ोर है कि वो एक भी केस री ओपन नहीं करा सका हाई कोर्ट में अभी तक। डॉक्टर मोहित, थैंक यू वेरी मच। बड़ी डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਡੀਪਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਇਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਅਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਰੂਦ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।